Hello friends, how are you? Obviously, today we would like to discuss very important topic. This is the last topic of this chapter, current electricity. After the completion of this chapter, we'll think about JEE NEET section and then we start the new chapter. But friends, particularly for these two words JEE NEET, this portion is very IMP. So let's start. Electrical energy and power. Today we would like to discuss A to Z about it. A to Z, that means all shortcuts, all we can say that very important points about electrical energy and power. So before moving towards the shortcuts, first of all think about the theoretical point. This one is the theory, it is already given in your NCERT textbook. So what's the reason that whenever current is passed through any conducting wire, then heat energy is produced? What do you mean by power? What is the electrical energy? So to understand these all words, think about this diagram. You can see in this diagram there is a resistive wire is shown in this diagram and it is connected with a battery of voltage V. Whenever this type of circuit is completed, then obviously current start its journey from positive pole of the battery and current will flow through this resistor R and available at negative pole of the battery. Whenever current passing through this resistor R, then you can see, think about these 2 points across this resistor R, it is A and B. This is not vector R, don't forget. Many students consider, you can see that vector R is the scalar, but I have represented direction of current. This is the direction of current. Current here flows from A to B. Obviously current flows from A to B, that means point A at high potential and point B at low potential. And you know that very well. What is the basic driver for the, we can say that current? Current is mainly driven, you know that very well, because of one driver, it is the potential difference. So obviously here at point A, let the potential at point A, it is VA, and at point B potential VB, you can see. Here current flows from A to B, that means one point is clear, VA is greater than VB. So potential difference between points A and B obviously greater than 0 or positive. Okay friends, so now one point is clear, current flows from A to B, so A at high potential, B at low potential. In short, VA is greater than VB and VA minus VB potential difference obviously greater than 0. Now what happened here? Here you can see whenever current is passing through point A to B, then I would like to find change in potential energy. We have discussed this point in chapter number 2. If you think about, you know, that electrical potential energy topic. So suppose the potential energy at this point A, it is UA, and let the potential energy at this point B, it is UB. So current flows, or let the delta Q amount of charge. Suppose, what do you mean by current? I am applying concept, or we have applied concept of current passing through this resistor, that means some amount of charge already passing through this resistor in very small time interval. So current I is equal to, you know that very well, delta Q by delta T. That means in delta T time duration, delta Q amount of charge is passing through this resistive wire. Okay, so delta Q simply amount of charge in a very small time interval delta T. So whenever delta Q charge passing from A to B, that means simply we are moving charge from A to B. So obviously to move charge, we have to do some work, and whatever the work is done, it is stored in the form of electrical potential energy. So obviously चार्ज को आप पॉजिटिव पोल से पॉइंट ए तक ले आए, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यूए होगी. फिर चार्ज को आप बी तक ले जाओ, तब पोटेंशियल एनर्जी होगी बी, वो यूबी. Obviously here charge will flow from A to B, then its potential energy changes from UA to UB. याद करो ये पॉइंट, ये हमने डिस्कस किया था. मैं वापस इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आए, इसलिए वापस फिर इधर लिखेंगे. डोंट वरी. You know that this is source charge, there is a test charge. This test charge is situated at point R, this is point P. Now if you move this charge from R to P, then its potential energy changes.
because work is required to move this charge from R to P. पहले चार्ज इनफाइनाइट पे था, तो इनफाइनाइट से R तक लाने के लिए जो वर्क डन था वो पोटेंशियल एनर्जी UR के तौर पे होगा। फिर यही चार्ज को अपन लोग इनफाइनाइट से P पॉइंट ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी UP। तो इफ यू मूव दिस चार्ज फ्रॉम R to P, then its potential energy changes. You can see that UR to UP. Same story here. Here we are moving charge from positive pole of the battery to A then B. तो चार्ज A के ऊपर से B पर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी obviously. तो what is the change in electrical potential energy? So let the potential energy at point A it is UA, potential energy at point B it is UB. So change in electrical potential energy delta U is equal to final potential energy minus initial potential energy. So final that means potential energy at point B and initial that means potential energy at point A. So UB minus UA. But you know that potential energy that means simply work done, and work done that means charge multiplied by potential. So what is the potential energy at point B? So potential energy at point B that means charge multiplied by potential. So what is the charge? Delta Q amount of charge. So here delta small q कर देता हूँ. So delta Q amount of charge flow you can see that through this wire. यहाँ पे हमने delta Q charge लिया है. So charge multiplied by potential at point B. So delta Q into VB minus what do you mean by UA? Potential at point A. Sorry, potential energy at point A. So potential energy at point A that means charge multiplied by potential at point A. चार्ज तो वही का वही फ्लो होगा, जितना चार्ज ए के पास से फ्लो हो रहा है उतना ही चार्ज बी के पास, मतलब चार्ज सेम, मगर पोटेंशियल बी का वीबी था, ए का हम लोग जानते वीए. डेल्टा क्यू वीबी माइनस डेल्टा क्यू वीए. सो डेल्टा क्यू ऑलरेडी कॉमन, सो वीबी माइनस वीए. बस एज पर दिस डिस्कशन वीए ग्रेटर देन वीबी, so VA minus VB is greater than 0. That means potential difference is positive. But VA greater than VB, that's why. But here you can see that VB minus VA, it is not VA minus VB. So obviously VB minus VA less than 0. That's why we have set up here minus sign. So VB minus VA, that means potential difference across AB, it is suppose V. So instead of VB minus VA, we can put V. But minus V because of this reason. If there is VA minus VB then plus V, but here VB minus VA, that's why less than 0, so minus V. So delta Q is equal to I delta T. Because of this equation you can see delta Q is equal to I delta T. So delta Q is equal to I delta T, so minus VI delta T. This is the change in electrical potential energy. So just concentration required on this minus sign. Friends, you can see this minus sign indicating the loss of electrical potential energy. Here potential energy or electrical potential energy is lost, or there is some loss of electrical potential energy. Whatever the electrical potential energy is lost, it is converted in the form of kinetic energy. As per law of conservation of energy, I can write change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to 0. So delta K is equal to minus delta U. But minus delta U already with us. So minus minus plus. So here plus sign indicating gain. So here you can see that some electrical potential energy is lost. Whatever the electrical potential energy is lost by the charges, it is gained by charged particles in the form of KE. बस ये एक ज वर्ड है कि पूरे कहानी का जो जिसे कह सकते हैं कि मेन हीरो है, किरदार, वो ये वर्ड है क्या? Whatever the electrical potential energy is lost, it is gained by electrical charges in the form of kinetic energy. जितनी electrical potential energy चार्ज गवाएगा उतनी electrical potential energy के बदले kinetic energy चार्ज लेगा. मतलब जब जिसे कह सकते हैं कि under the effect of potential difference charge flows through this resistive wire, then its kinetic energy increases. क्यों? Because gaining of kinetic energy. तो kinetic energy increases, then obviously you know that very well what happen with the, we can say that heat energy. तो ये अपन लोग को gain है, वो kinetic energy और heat energy के साथ अपन लोग बाद में डिस्कस करते हैं. मगर ये जो kinetic energy है
उसको अपन लोग पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ाते, बाद में हीट एनर्जी के फंडे निकालते। सो दिस इज गेन by we can say that or gain of charge in the form of kinetic energy gained by the charged particle. So here whatever the work is done by this battery, what do you mean by electrical energy? Just concentration required, very important word now. काफी लोगों को ये पता नहीं चलता है what is the electrical energy of battery or power. So the amount of work is done by battery, amount of work is done by this battery to maintain the current in the circuit, it is called simply electrical energy of the battery. And what do you mean by power? Power, that means the rate at which the battery or source of EMF, simply we can say that maintain the current, it is called simply power, but in unit time, you know that, or rate आ गया मतलब time आ गया. So the power, that means the rate at which the work is done by, we can say that battery to maintain the current, it is called power. And what do you mean by electrical energy? It is the amount of work is done by the battery to maintain the current in the given circuit. So as per definition of electrical energy, now we have to find amount of work done. So amount of work done, it is simply amount of heat energy. देखो मैंने इधर एक वर्ड यूज कर दिया amount of heat energy, क्योंकि जितना वर्क करेगा ये बैटरी, जितना करंट को फ्लो करवाने के लिए वर्क डन देगा, वो वर्क डन अपन लोग जानते हैं स्वाहा, उसका कन्वर्जन हो जाता है हीट एनर्जी में, उसका भी राज अपन लोग बाद में बोलते हैं. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी मैंने डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, ये देखो एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, बट डेल्टा के ऑलरेडी वी आई डेल्टा टी, सो इंस्टेड ऑफ डेल्टा के वी आई डेल्टा टी, अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि ए डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैंने डेल्टा एच, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो ये बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन लोग जानते हैं किस में कन्वर्ट होने वाली, हीट एनर्जी में. तो मैंने डायरेक्ट हीट एनर्जी लिख दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी. सो एच इज इक्वल टू सिंपली वी आई टी, डेल्टा एच डेल्टा टी वेरी स्मॉल अमाउंट, बट नाउ यू कैन सी द कंप्लीट फॉर्मूला एच इज इक्वल टू वी आई टी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आप इसको वर्क डन भी कह सकते हो. दिस इज सिंपली यू कैन सी दैट delta W is equal to VI delta T, but delta T, if you think about here, so delta W upon delta T, it is the amount of work done. Amount of work is done by the battery per unit time. Okay, it is called the power of the battery, or I can say the rate at which work is done by the battery to maintain the current, it is called power. So power, that means work done by time. So W upon time, that means power. So power P is equal to VI. This is the most IMP formula of power, and this is the formula of, you can see that electrical energy. This is the electrical energy is supplied by this battery, but you know that very well, because of resistance offered by this wire, this electrical energy is swaha, or I can say that converted in the form of heat energy, and this is called heating effect of electric current. What is the reason that supply energy or electrical energy is supplied by this battery? It is converted in the form of heat energy. Actually what happens, whenever current is passing through this resistive wire, current, that means simply mobile charge carriers, you know that very well, electrons, ये इलेक्ट्रॉन ये चार्ज कैरियर देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके जा रहा है, मगर ये वायर में से पास हो रहा है, और अपन लोग जानते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल जब वायर में निकलता है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है. मगर आपने देखा था कि उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट में अपन लोगों ने एक और वर्ड डिस्कस किया था, मोमेंटरी एक्सीलरेशन, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल एक जिसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस के जंगल में से पास हो रहा है. तो यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव आयंस इस तरह ऑसिलेटरी मोशन करे, उसके साथ उसका कोलाइजन होने वाला है. जब कोलाइजन होगा, then what happen, whatever the electrical energy associated with this charge, it get transferred to this oscillatory positive ion. तो ये पीए हुआ तो था, यानी उसका कुछ एनर्जी तो था, उसके बाद एक कोलाइजन हुआ, कोलाइजन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज की ट्रांसफर हुई किसको, पॉजिटिव आयन को. तो पॉजिटिव आयन को एक्स्ट्रा एनर्जी और मिली, तो पिया हुआ था और पिएगा, तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी. एंड व्हाटएवर द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन of constituent particles, simply it is called, you know, that heat energy. So it leads towards the heat energy. Indirectly I can say whatever the electrical energy of charge first of all transfer to kinetic energy,
and this kinetic energy is simply available in the form of heat energy. So in this way, whatever the electrical energy of charge, it is transferred in the form of heat energy, and this process is called heating effect of electric current. That means whenever current is passed through any conducting wire, then you know that very well, conductor gets heated आफ्टर वी कैन से द पासिंग करंट. अपन लोग जानते हो और इसका अपन लोग बेहतरीन यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. यू नो दैट वेरी वेल. सैंडविच टोस्टर, water heater, electrical water heater, many you can see electrical kettle, you know that lots of appliances, you know that iron, you know that special. तो ये सभी इसके एप्लीकेशन है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेहतरीन एप्लीकेशन फ्यूज. अगर ये ना होता तो अपन लोग जानते काफ़ी लोगों के घर पे बड़े बड़े फोटो होते, मगर वो फोटोग्राफ्स के ऊपर हार पहने हुए होते, क्योंकि ये फ्यूज ने काफ़ी लोगों को बचाया. सो बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो फ्यूज. सो फ्रेंड्स, वो अपना जिम्मा नहीं, वो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट है. मगर ये जो थियरी है वो ये कहानी बता रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हम लोग, यानी ये बैटरी है वो देगी, मगर जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है वो हम लोग जानते हैं रेजिस्टिव वायर के कारण हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती होगी. इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह सीधा इधर हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिखा. दूसरा फॉर्मूला है पावर. तो पावर का मतलब होता है रेट एट विच work is done by the battery to maintain the current. It is called simply power. Or you know that amount of work is done by the battery per unit time to maintain the current in the circuit. It is called power of the battery. तो अब अपन लोग ये पूरी कहानी हमने देखी. वापस मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि ये थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के मुताबिक पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसमें से चार्ज करंट फ्लो करवा रहे हैं. करंट मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में डेल्टा क्यू जितना चार्ज इस वायर में से पास हो रहा है. वायर में से करंट ए टू बी जा रहा है, मतलब ए हाई पोटेंशियल पे है, बी लो पोटेंशियल पे है, यानी ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा. अब चार्ज ए टू बी जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. पॉइंट ए के पास पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, पॉइंट बी के पास पोटेंशियल एनर्जी यू बी है. Charge moves from A to B. So what is the change in electrical potential energy of the charger? It is final minus initial, यानी potential energy at B minus potential energy at point A. इतनी potential energy change होगी. Potential energy that means work done. Work done मतलब charge multiply by potential. Charge multiply by potential. Charge common. Potential difference इधर negative आएगा क्योंकि VB minus VA है, जबकि VA minus VB greater than 0. So minus, ये माइनस साइन और डेल्टा क्यू आई डेल्टा टी, ये माइनस साइन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि चार्ज जब ए के ऊपर से बी पर जाएगा तब इतनी एनर्जी लॉस होगी. जितनी एनर्जी लॉस होगी इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होती है, और ये चार्ज पार्टिकल को जिससे कह सकते हैं कि ये एनर्जी मिलती है. और ये एनर्जी के मुताबिक अपन लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक देखें तो इतना जिसे कह सकते वर्क हो रहा है, वी आई डेल्टा टी जितना वर्क करना पड़े. अगर आप डेल्टा टी टाइम में under the effect of potential V, you would like to maintain I amount of current, then you have to do this amount of work VI delta T. अगर आप डेल्टा टी जितने टाइम ड्यूरेशन में इस सर्किट में से I जितना करंट फ्लो करवाना चाहते हो, वो भी ऐसी बैटरी जितना वोल्टेज, ऐसी बैटरी जिसका वोल्टेज V हो, तो बैटरी को कंटिन्यूअसली इतना वर्क करना पड़े और डेल्टा टी टाइम VI डेल्टा टी. और जो वर्क डन हो रहा है वो अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है उसको बैटरी का. मगर अपन लोग जानते हैं कि ये वर्क डन के फॉर्मूले के ऊपर से वर्क डन अपॉन टाइम यानी पावर. सो दिस इज द पावर ऑफ बैटरी. दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बैटरी. और बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस वायर दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड और डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. सो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी? VIT मोस्ट IMP. ये फॉर्मूला याद रखना है. लास्ट में वापस मैं दो डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि कंसेप्ट पता चले. ऐसी डेफिनेशंस टेक्स्ट बुक में बराबर नहीं थी, इसलिए समझो. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बैटरी? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बैटरी दैट मींस द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द बैटरी. अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द बैटरी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल करंट इन द गिवन सर्किट. And what do you mean by power of the battery? So obviously amount of work is done by battery per unit time or in unit time to maintain the current in the circuit. Or in other words I can say the rate at which work is done by the battery to maintain the current in the circuit, it is called power. तो अपन लोग पावर के फॉर्मूले को एक कदम आगे बढ़ाए. थियरी
एक बार देखने लायक है, पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, डोंट वरी। मगर ये मैंने बोला JEE नीट के लिए बेहतरीन, सो बी अलर्ट। सो पावर P इज इक्वल टू VI, बट पावर P is equal to VI, but you know that very well, V is equal to IR as per Ohm's law. So there is one more formula, I square R. But if you consider I is equal to V by R, suppose somebody wants to write I is equal to V by R, then there is one more formula, V square by R. So there are 3 formulae for power. Number 1 VI, this is the general equation, this is the equation P is equal to I square R, and this is, you can see that V square by R. Very IMP, we have to apply this equation as per, we can say, the requirement. This is very interesting formula, it gives idea about the power dissipation. ज़्यादातर जब करंट का इंफॉर्मेशन हो तब अपन लोग पावर डिसिपेशन, इतना पावर डिसिपेट होगा, ओके। तो ये जो पावर डिसिपेट हो रहा है, मतलब ये पावर है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इतना बैटरी का पावर है, आई स्क्वायर आर जितना पावर वो स्वाहा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर। सो वेरी आईएमपी। सो सीरीज के लिए अगर ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे अपन लोग पैरेलल कनेक्शन के लिए, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रहता है कांस्टेंट। सो मोस्ट आईएमपी, तो ये 3 फॉर्मूले, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, इट इज VIT। अगर VIT की जगह ऐसा भी लिख सकते हो I स्क्वायर RT, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर जिसे कह सकते हैं इधर I स्क्वायर की जगह V स्क्वायर बाय R स्क्वायर कर दो तो V स्क्वायर बाय R। This all are very empty formula for amount of heat energy produced, VIT, I square RT, V square T by R। अगर T कोई साइड ले आओ तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तीनों 3 फॉर्मूले। ओके फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट टाइम की पॉइंट था। अब इसके रिलेटेड ये टॉपिक का थियोरेटिकली ओके 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे, मगर मैंने बोला इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट ऐसे देखा जाए तो ये 2 वर्ड्स के लिए जोरदार है, JEE नीट। इसके पीछे का रीजन है कि हमारे टेक्स्ट बुक में पावर डिसिपेशन रिलेटेड मोस्ट ऑफ एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, बराबर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादातर कोई यानी कोई इलास्ट्रेशन या कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मगर फिर भी नीट, JEE, यू कैन थिंक अबाउट, वी कैन से दैट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लाइक एम्स, उसमें सब में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसके पूछे हुए हैं। अभी अपन लोग जब डिस्कशन शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा जिसे कह सकते समंदर है। तो अपन लोग शुरू करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो पोर्शन है वो अच्छी तरह जिसे कह सकते देखना है बराबर, वेरी इंटरेस्टिंग। अपन लोग वीडियोस को, लेक्चर को 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि आपको एक साथ जिसे कह सकते हैं कि स्ट्रेस ना आए। 45-50 मिनट्स बैठने के बाद आप दूसरा लेक्चर, मगर मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स है वो ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक पार्ट को अच्छी तरह देखते हो तो सेकंड पार्ट में फिर थोड़ा लेजीनेस आ जाती है, ऐसा डोंट डू दिस। ये सब कुछ एक साथ पढ़ने के लिए, वरना एक साथ पूरा लेक्चर भी बनाया जाए तो भी जिसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, मगर पॉइंट ये है कि उससे प्रॉब्लम आपको होने वाला है, लोड आपके ऊपर आएगा। इसलिए अपन लोग इसको थोड़ा स्प्लिटिंग पॉइंट में जाते हैं ताकि आपको पता चले। अब मैं इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। दिस टाइप ऑफ 3 branches are given. 3 ampere current is passing through this 2 ohm resistor. There is a battery and 1 ohm and 5 ohm. Question पूछेंगे, find power consumption or power dissipated for 5 ohm resistor. What is the power for 5 ohm resistor? Think about it. Try to solve it. Okay, ready? So power for 5 ohm resistor, that means P is equal to, I can write I square R formula. That means R already 5 ohm, you can see. So we have to find simply the current passing through this resistor. This is your basic target. So this is 5 ohm. What is the current passing through this 5 ohm resistor? If you have idea about the current passing through this 5 ohm resistor, then this numerical become very easy. So don't forget,
Here 3 ampere current is given. So what is the PD across these two terminals? Suppose AB. So 2 3 just 6 because PD yani current multiplied by resistance. So what is the potential difference across AB? 6 volt. So think about these all branches. These all branches are connected in which way? Parallel. So for parallel combination, you know that suppose this is X, this is Y. So here PD across AB is equal to PD across XY. So what is the PD across AB? 6 volt. So PD across XY also 6 volt. So what is the resistance of this branch? Because I would like to find current passing through XY branch. That means potential difference multiplied by resistance of XY branch. PD already 6 volt across XY. What is the current passing through this point? So for that PD required, already PD we have found. What is the resistance? Resistance 5 plus 1 because series 6 ohm. So resistance across XY branch also 6. So answer 1 ampere. But this is not your final answer. We would like to find power for 5 ohm. So current passing through 5 ohm resistor, it is 1. Resistance already 5. So obviously 5 watt. Most IMP. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Very very important. Now you think about, we can say that combination of, we can say that resistors, or I can say that series or parallel combination for power. ये जोड़ता कभी कभार आपको n number of appliances, electrical appliances like bulbs, heaters, इस तरह जिसे कह सकते हैं सीरीज में कनेक्ट करके देंगे और पैरेलल. ज्यादातर बल्ब इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज. चलो तो पहले सीरीज से शुरू करते हैं. सब कुछ जेडबल नीट शुरू हो. डोंट फॉरगेट इसमें बोर्ड का कोई रोल है ही नहीं. अगर ए ग्रुप हो या बी ग्रुप, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको अच्छी तरह देखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल combination of, you can see that bulbs. ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में बल्ब्स ही देंगे. सो इसमें अपन लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स यू कैन सी दिस टाइप ऑफ बल्ब 1 2 3 bulbs are connected in series with this supply. अब इसका जिसे कह सकते हैं पावर है P1, it is P2 और P3. So what is the, we can say the total power for series combination. So total power consumption for series combination, it can be found by using this formula. 1 upon Ps is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2 1 upon P3. I am not deriving, don't worry. क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा कैसे है, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ. डिराइव करो तो भी इजी, मगर अपन लोग को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है. इसके फॉर्मूले सीधे याद रखो और याद रह जाए ऐसे. सो like capacitors, so whenever bulbs are connected in series or electrical appliances are connected in series, then what is the power consumption for the net power consumption for the given combination? It can be found by using this point. So this is your most important point. For n number of bulbs, suppose n number of bulbs or electrical appliances having same resistance R, यानी कि अपन लोग कहते हैं हैविंग सेम पावर. चलो सपोज इधर 1 2 3 4 ऐसे n नंबर ऑफ बल्ब्स है जिसका पावर सेम हो. सो वी कैन से दैट व्हाट इज द पावर इन दिस सिचुएशन. सो 1 upon p plus 1 upon p plus up to, you know that n. So 1 upon ps is equal to n by p. It gives ps is equal to p by n. You can see power get divided in, we can say the n parts. Most IMP for series. मगर ये फॉर्मूला से याद रखना शुरू कर दो. Very very IMP. So for series combination of bulbs, power can be found by using this formula. Very important. Number next. Now after that series, now we think about parallel. Okay. So now for parallel combination. इसके भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही MCQs बनने वाले हैं. So next point you can see the parallel combination. So for parallel combination, what is the, we can say the net power. मैं diagram ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, directly it is P1 plus P2 plus P3. You can see direct summation. Suppose n number of bulbs are connected in parallel.
having same power P, then what's the net power? Then P is equal to P plus P up to n times. So power for parallel it is n times of P, you can see. इसके ऊपर से एक बेहतरीन शॉर्टकट पूछते, वो क्या है जरा देखे। शॉर्टकट का एप्लीकेशन पूछेंगे। What is the, we can say that if n number of appliances are connected in series, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, if n number of appliances are connected in series, then its power PS. After that, this all appliances are connected in parallel. पहले n number of जो appliances थे या bulbs थे उसको series में कनेक्ट किया, फिर उसको parallel में कनेक्ट करो, then find the ratio of parallel to series power. तो यानी कि PP to PS, तो अपन लोग तो जानते हैं P to PS for n number of bulbs, for n number of bulbs. So what is the formula for n number of bulbs having same power NP? और इधर थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था P by n. So obviously PP n into n यानी n square multiply by PS. धांसू formula, most IMP. Anytime if n number of appliances are connected in series and after that they are connected in parallel, then what's the ratio of power for parallel to series combination? It can be directly found by using this shortcut. Very 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 IMP. So PP is equal to n square times PS, so where n represent number of appliances. इसके रिलेटेड में क्वेश्चन देता हूँ, मगर पहले जरा देख लो एक बार अच्छी तरह। रेडी? ओके, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज ये बहुत ही फेमस और पूछा हुआ क्वेश्चन। सपोज देयर आर 3 bulbs. First of all, they are connected in series. Then power consumption is 9 watt. You know that watt is the unit of power. Now these 3 bulbs are connected in parallel, then what's the power consumption? So for parallel power consumption, here number of bulbs 3, पहले 3 bulbs को जब सीरीज में कनेक्ट किया तब 9 watt पावर कंजप्शन है। तो अगर तीनों 3 bulbs को अपन लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो व्हाट्स द पावर कंजप्शन? सो पावर कंजप्शन n square PS. दिस इज द शॉर्टकट where n represent number of bulbs. How many number of bulbs? 3. So 3 square, and what is the power consumption for series? It is 9. So 9 into, we can say that 9, 81 watt, you can see. ऐसा क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ है ऑलरेडी, बट दिस इज द वेरी वेरी IMP फॉर्मूला. सो फ्रेंड्स, वी डिस्कस अबाउट पावर. अगर आपको फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे, ये भी बहुत ही फेमस, देखो ये बहुत ही फेमस और चिकना केस, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा 50 मार्क्स सीरीज में. कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. देयर आर 2 bulbs, bulb 1 and bulb 2. bulb 1 200 watt, bulb 2 50 watt या 100 watt. इसको कहते हैं बल्ब का वोल्टेज, यानी बल्ब का पावर, रेटेड पावर. इतना पावर मैक्सिमम वो ले सकता है, ये भी मैक्सिमम इतना पावर है. अपन लोग कहते हैं, याद करो आपके घर पे बल्ब उठ जाता है तो आपके घर में कोई डीडी मम्मी कहते हैं जब बल्ब ले आओ, 100 का बल्ब लेके आओ, 200 200 का बल्ब, 50 का बल्ब. ये 100 का बल्ब है, वो उसका वोल्टेज है. सो 100 वोल्ट बल्ब, 200 वोल्ट बल्ब. अब इस बल्ब का रेटिंग दिया, इसको 220 वोल्ट सप्लाई के साथ यानी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको भी 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करें. तो ये दोनों बल्ब है, उसका अगर सीरीज कनेक्शन किया जाए तो जिसे कह सकते पावर क्या होगा, और पैरेलल में क्या होगा. तो सीरीज में अपन लोग जानते क्या करने का, 1/200 प्लस 1/100. पैरेलल में क्या करने का वो भी जानते, 200 प्लस 100. ऐसे क्वेश्चन है वो पूछेंगे और ऑलरेडी पूछ चुके हैं, मोस्ट IMP. तो हमने सीरीज और पैरेलल, मुझे फॉर्मूले चकाचक चाहिए, डोंट फॉरगेट, क्योंकि ये बहुत ही बेताज बादशाह है इस पूरे रीजन में. अब अपन लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेहतरीन जिसे कह सकते हैं शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं. अब अपन लोग जो डिस्कस करने वाले मोस्ट IMP. अब आपको इसलिए मैं मोस्ट IMP कहता हूँ क्योंकि ये जो पोर्शन है
वो बल्ब्स के ब्राइटनेस रिलेटेड, उसके कंजप्शन रिलेटेड, मगर लोगों को ये बहुत ही कम पता चलता है। इसलिए मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 10-15 मिनट जो भी हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई करना। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, उसका रेटिंग होता है, उसके ऊपर उसका रेटिंग लिखा होता है। यू नो दैट, सपोज अभी मैंने बोला ये बल्ब है, देयर इज वी कैन से दैट बल्ब, this is you can see that bulb. For this bulb, suppose rating is given 200 watt and suppose 100 watt and 220 volt, यानी इसका वोल्टेज पावर 100 वोल्ट है और इसका सप्लाई वोल्टेज, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, कनेक्टेड वोल्टेज 220 वोल्ट, ये इसका रेटिंग है। इससे ज्यादा जाने का नहीं। ये इसका आपको एक साइन बता रहा है कि मेरा ये बल्ब चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मेरा मैक्सिमम पावर 100 वोल्ट है और मैं मैक्सिमम 220 वोल्ट सप्लाई के साथ चल सकता हूँ। इससे ज्यादा सप्लाई दिया मतलब नया बल्ब लिया, मोस्ट आईएमपी। अब जरा देखना, ये जो पावर है उसको बल्ब का रेटेड पावर कहते हैं, पावर पी रेटेड। इसको अपन लोग अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी आर। और ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसको भी कहते हैं रेटेड सप्लाई, सो वी रेटेड, और बाद से इसको भी बोलेंगे वी आर। याद रखना, कोई भी बल्ब है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसमें ये दो चीजें तो होगी, उसका रेटिंग, रेटिंग के ऊपर से उसका रेटेड पावर और उसका रेटेड सप्लाई वोल्टेज पता चली जाए, जो लिखा ही होता है। अब रेटिंग आपको एक इंफॉर्मेशन एडिशनल देगा, मोस्ट टाइम पे ऑलवेज, मैं लिख रहा हूं ऑलवेज फ्रॉम रेटिंग ऑफ डिवाइस और रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वी कैन ऑब्टेन रेजिस्टेंस, वेरी आईएमपी इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन। तो आपको जो भी बल्ब दे उसका रेटिंग के ऊपर से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे? सो आई कैन राइट power P is equal to V square by R. This is the formula, you know that. But we'll write here rated power PR, here rated supply voltage VR. You can see that. So it gives resistance of bulb or resistance of electrical appliances. It is V square R upon PR. धूम फॉर्मूला, फॉर्मूला में कोई दम कम नहीं है। ये जो डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई रिटन हियर धूम। आज से याद रखने का, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको दे, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर से अगर आपको पहला इंफॉर्मेशन जो कोई मिलेगा वो होगा उसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन लोग ऑलवेज पहले तो डिवाइस का रेटिंग देखेंगे। रेटिंग में दो इंफॉर्मेशन होगी। एक है उसका पावर और दूसरा है जिसे कह सकते हैं उसका वोल्टेज। तो पहले अपन लोग वोल्टेज और पावर के ऊपर से देखो, जो पावर और वोल्टेज है उसको अपन लोग कहते हैं रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। रेटेड पावर डिनोटेड बाय पी आर एंड रेटेड वोल्टेज इज डिनोटेड बाय वी आर। इसके ऊपर से आपको पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो होगी उसका रेजिस्टेंस। सो यू कैन सी दैट वी हैव फाउंड रेजिस्टेंस। तो पहला पड़ा पावर, मोस्ट आईएमपी। जो देखना है सब कुछ जोरदार है। अब अपन लोग ऐसा बल्ब लेके आए चलो बाजार में से, ए जिसका रेटिंग वोल्टेज है 100 वोल्ट, यानी इसका पावर 100 वोल्ट है, जिसको अपन लोग कहेंगे रेटेड पावर 100 वोल्ट है और उसका रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट। और तुरंत ही हमारे पास बल्ब आएगा। ये दोनों की इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमने तीसरी इंफॉर्मेशन निकाल ली, रेजिस्टेंस। ओके, यानी जो बल्ब है उसका फिलामेंट, उसका रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया। अब इस बल्ब को हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो हम कनेक्ट करेंगे, इसके बाद वोल्टेज देंगे। तो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करने वाले उसको कहते हैं रेटेड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, देयर इज अ मिस्टेक, सॉरी। सो अप्लाइड वोल्टेज। तो जरा देख के जाना, ये बल्ब इधर था। नाउ अप्लाइड वोल्टेज जो अपन लोग देने वाले हैं, रेटेड वोल्टेज है वो उसका रेटिंग में, अप्लाइड वोल्टेज हम देंगे जैसे ही बल्ब को कनेक्ट करेंगे। सपोज हम ये 220 वोल्ट है, उसके बदले मैंने दिया 110 वोल्ट। तो दिस इज योर अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज इज डिनोटेड बाय VA। इफ अप्लाइड वोल्टेज का देखना बराबर, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज, देन
अब रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है और यहाँ से सीधा 440 वोल्ट का सप्लाई दिया है. So if applied voltage is greater than that of the rated voltage, that means जो rated voltage है उससे ज्यादा वोल्टेज दिया मतलब नया बल्ब लिया. That means appliance you can see that here bulb is get you can see that fused. तो ये गया. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से वो फ्यूज्ड हो जाएगा. तो ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लमेटिक. ओके, कोई बोले तो ठीक है मगर हम लोग उससे उल्टा सोचे. अब अपन लोग जो आइडियल सिचुएशन है यानी डेली रूटीन में, सो इफ अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन रेटेड वोल्टेज देन व्हाट हैपन. सो नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट. ये तो पता चल गया. इफ अप्लाइड वोल्टेज, अब देखना बराबर, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन रेटेड वोल्टेज, यानी 220 वोल्ट का सप्लाई था, हमने दिया 110 वोल्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो ये इंस्ट्रूमेंट है, अब वर्क करना शुरू करेगा. यानी वो सप्लाई लेके, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी जनरेट करेगा. बल्ब का टास्क आप जानते हो, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. यानी कि अपन लोग कहेंगे जो पावर हमने दिया, जो पावर सप्लाई देंगे, ये पावर उसके मुताबिक वो पावर का कंजप्शन शुरू करेगा. रेडी. सो दैट मीन्स देयर इज सम पावर कंजप्शन. It is called consumed power. This is called P consumed. पता चला, क्योंकि हम जैसे ही सप्लाई देंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस पावर कंजम्पशन करना शुरू करेगा. जो पावर कंजम्पशन करना शुरू करे, पावर कंजम्पशन मतलब बल्ब होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट में कन्वर्ट करके देगा. वाटर हीटर होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा और वाटर को बॉईल करेगा. तो ये उसके टास्क शुरू करेगा. मतलब अपन लोग इधर बल्ब के लिए डिस्कस करें तो जो पावर कंजप्शन, मतलब इधर अपन लोग कंसीडर करेंगे ब्राइटनेस. रेडी. पावर कंजप्शन जो शुरू करेगा वो, यानी कि वो लाइट एनर्जी ब्राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसको मिलेगा. दैट मींस अपन लोग कंसीडर करेंगे पावर कंजप्शन के फॉर्म में. अब ऐसी सिचुएशन में दो कंडीशन आएगी. मोस्ट टाइम पे बी अलर्ट. में वापस फ्लैशबैक में ले जाता हूँ. कोई भी डिवाइस होगा, उसका रेटिंग होगा, उसके ऊपर जो रेटेड पावर है उसको पीआर कहेंगे, जो रेटेड वोल्टेज है उसको वीआर कहेंगे. रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से ऑलवेज रेजिस्टर पहले मिल जाएगा, बिंदास रेजिस्टेंस मिलेगा. और उसके बाद जिसे कह सकते हैं कि हमें दो कंडीशन देखनी. अगर हम लोग जो डिवाइस है या अप्लायंसेस है उसका जो रेटेड पावर है या रेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज देंगे, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन दैट ऑफ रेटेड वोल्टेज, देन इंस्ट्रूमेंट गेट फ्यूज्ड. मगर अगर अपन लोग जिसे कह सकते हैं रेटेड वोल्टेज से कम सप्लाई देंगे, वोल्टेज अप्लाइड इज लेस देन रेटेड वोल्टेज, देन डिवाइस वी कैन से दैट परफॉर्म, वी कैन से दैट टास्क, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू करेगा. यानी पावर कंजप्शन वर्क आएगा, यानी वर्ड आएगा, ये पावर कंजप्शन. बल्ब के लिए जो पावर कंज्यूम होगा वो अपन लोग जानते हैं लाइट एनर्जी यानी ब्राइटनेस के फॉर्म में मिलेगा. अब ये ब्राइटनेस है या जो पावर कंजप्शन है उसका मैंने बोला दो तरीके होते हैं. सीरीज कनेक्शन में बल्ब से तो क्या करना है, और पैरेलल में होगा तो पावर कंजप्शन का क्या होगा, वो डिस्कशन. काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ही फंसते हैं. अपन लोग आज इसमें मास्टरी लेने वाले हैं. सो बी अलर्ट अबाउट इट. इतना भले रहा लिखा हुआ, अब मैं इसको हटा देता हूँ. अपन लोग अब पावर कंजप्शन का रिलेशनशिप निकालते हैं रेजिस्टेंस के साथ. सबसे पहले देखेंगे फॉर सीरीज. Bulbs are connected in series. Then what happen? For series combination, you know that very well. Power consumption को मैं बता देता हूँ PC, यानी लिखूंगा brightness. Power consumption is direct. सीरीज के लिए कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, करंट. तो P is equal to फॉर्मूला देखो VI. तो P is I constant, so P is directly proportional to V voltage. You can see it. So power consumption is directly proportional to voltage. मगर रेजिस्टेंस के साथ टाका भिड़ना आपने को. तो रेजिस्टेंस के लिए अपन लोग ओम्स लॉ अप्लाई करें. I is equal to V by R, यानी कि V is equal to IR. मगर I constant, so V is directly proportional to R. So V is directly proportional to R. That means power consumption, जो भी पावर कंज्यूम होगा वो उस डिवाइस के रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा. मगर
रेजिस्टेंस तो रेटेड पावर के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो आप देखो ये कहानी है, ये मोस्ट टाइम पे फॉर सीरीज, जब भी डेटा में सीरीज आए तब आपको ये कहानी देखनी। इसमें सबसे दमदार जो हीरो है वो मैं इधर लिख रहा हूं, द पावर कंजप्शन दैट मींस द ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब is directly proportional to the resistance offered by bulb। यानी कि तीन बल्ब्स हो, तीन बल्ब्स में जिसे कह सकते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका कंजप्शन यानी उस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा। कभी कभार आपको रेजिस्टेंस नहीं देंगे, डोंट वरी। तो आप जानते हो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो आपको बल्ब्स देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक न्यूमेरिकल जिसे कह सकते हैं कि बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो इधर एक फॉर्मूला अपन लोग लिख देते हैं, R इज इक्वल टू स्क्वायर R अपॉन पी आर, जो ये अपना रेटेड वोल्टेज के ऊपर से रेजिस्टेंस। अब देखो आपको तीन बल्ब दिए, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3। दे आर इन सीरीज। कीप इन माइंड दिस ऑल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज 100 वोल्ट बल्ब, 200 वोल्ट बल्ब एंड 300 वोल्ट। चलो इस तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो तीनों बल्ब में से कौन सा बल्ब चकाचक यानी कि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा, यानी सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देगा। तो मैंने बोला सीरीज, वी आर डिस्कसिंग फॉर सीरीज। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यू कैन सी पावर कंजप्शन ऑफ ब्राइटनेस is directly proportional to resistance, but we have no idea about resistance. They have given rated power. So for series combination power consumption or brightness is inversely proportional to the rated power। यानी जिसका रेटिंग पावर, तो ये तीनों का रेटेड पावर है। देखो सबसे ज्यादा रेटेड पावर है थर्ड बल्ब का, तो जिसका रेटेड पावर ज्यादा होगा उसका कंजप्शन कम होगा यानी ब्राइटनेस कम। तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी बल्ब 1 की। सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकंड, दैट एंड ऑफ द थर्ड। पता चला मोस्ट आईएमपी। तो ये बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ इल्यूमिनेट होगा इन कंपैरिजन ऑफ सेकंड एंड थर्ड। थर्ड का ब्राइटनेस बहुत कम होगा। तो ये जो कहानी है वो धूम कहानी है, इसके ऊपर से आपको पता लगाने का है। तो आज से सीरीज कनेक्शन का स्लोगन क्या, जिस बल्ब का रेटिंग देखने का बराबर, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, या फिर उल्टा जिस बल्ब का पावर जिसे कह सकते हैं कि कम उसका ब्राइटनेस ज्यादा। देखो ये तीनों में पावर कम है फर्स्ट का, तो उसका कंजप्शन ज्यादा। ऐसा दिमाग में याद रखने रट्टे मारने से अच्छा ये कंसेप्चुअल देखो बहुत इजी। सो मोस्ट आईएमपी। नाउ सेम स्टोरी विल अप्लाई फॉर पैरेलल। अगर इस तरह के बल्ब्स पैरेलल में होते हैं तो कौन सा बल्ब है वो चकाचक ज्यादा होता। सो नाउ डिस्कस फॉर पैरेलल। सो फ्रेंड्स दिस ऑल आर वेरी आईएमपी। डोंट फॉरगेट मोस्ट आईएमपी टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। प्रॉब्लम इसका है कि ना तो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी टेक्स्ट बुक में, कोई यानी कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यूज नहीं, मगर आप जेडबल नीट के पेपर्स देखना, बेहतरीन क्वेश्चंस पड़े हैं और ये सभी के थ्रू बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो जस्ट कंसंट्रेशन फॉर पैरेलल। सो पैरेलल के लिए ब्राइटनेस यानी पावर कंजप्शन यानी ब्राइटनेस। सो फॉर पैरेलल यू नो दैट पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। So potential remain constant. So obviously you know that very well, P is equal to V square by R. So power consumption is inversely proportional to resistance. But you know that is I is equal to V by R. V constant. So R is I is, you can see that inversely proportional to R. That means P is directly proportional to current. So power consumption is directly proportional to current or inversely proportional to R. But R is inversely proportional to PR. In short, PR is inversely proportional to R. तो इधर inversely proportional हो तो direct proportion में आ जाए. So you can see here rated power is directly proportional to brightness. यानी कि अगर इस तरह के तीन बल्ब दिए हैं और तीन बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट किए हो तो कौन सा बल्ब ज्यादा चकाचक जलेगा। So obviously these all are connected in parallel. So for parallel combination power consumption is inversely proportional to R and directly proportional to the rated power. यानी कि जिसका rated power ज्यादा उसका brightness भी ज्यादा।
तो तीनों तीन बल्ब्स में रेटेड पावर इसका ज़्यादा है, मतलब ये बल्ब ज़्यादा चकाचक चलेगा, जबकि बाद में ये और सबसे ब्राइटनेस कम होगी 100 वोट की। सुपर। तो ये कहानी याद रखने की है जोरदार, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ही, वेरी वेरी आईएमपी। तो डोंट फॉरगेट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वी हैव डिस्कस। अब इसके रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ जो ट्राई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड देन विल थिंक अबाउट पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी भी इसके जैसा जोरदार है। सो बी अलर्ट। मैंने बोला ये पूरी कहानी जबरदस्त है, और इसीलिए हम लोग एक ही लेक्चर में, यानी कि पार्ट 15A 15B में कवर करना चाहते हैं। गुडसेट वाले भी खास ये पॉइंट जेडब्ल्यू नीट सभी के लिए वेरी आईएमपी, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। आई विल सॉल्व, वी कैन से द क्वेश्चन फ्रॉम सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट। So if you think about एम्स, you can see that. चलो तो आपको एम्स जिसे कह सकते पॉइंट ऑफ व्यू में से मैं बता रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक बल्ब marked by 40 watt 220 volt is used in a circuit of supply voltage 100 watt. Now its power is blank. देखो पहला क्वेश्चन है एम्स 2012. This is, you can see that एम्स 2012. There is a bulb. What is the rating of the bulb? Rating of the bulb is given 40 watt 220 volt. Watt मतलब power, a rated power PRM, and this is rated voltage VRM. अब क्वेश्चन पूछा है, ओके, is used in a circuit of supply voltage 100 volt. अगर इस बल्ब को मैं 100 वोल्ट के सप्लाई के साथ कनेक्ट करूं, यानी अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट, then you can see that what is the power of it, then its power is blank. तो पावर फाइंड करना हो तो अपन लोग तो जानते हैं पावर यानी v स्क्वायर बाय आर, और v यानी अप्लाइड वोल्टेज ही लेना पड़े, सो v स्क्वायर बाय आर, सॉरी v स्क्वायर बाय आर। तो लोचे v ऑलरेडी गिवन, नो आइडिया अबाउट आर। अपन लोगों ने पहले ही बोला रेटिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का रेटिंग आपको चिल्ला चिल्ला के एक इंफॉर्मेशन देगा, रेजिस्टेंस। सो वी कैन इजीली फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन। फॉर्मूला आप जानते हो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो हियर R इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज अपॉन पावर रेटेड। सो ये फॉर्मूला इधर रख देते हैं, V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर R इनटू PR। ये मैंने बना दिया शॉर्टकट। सो इफ यू हैव आइडिया अबाउट रेटेड पावर and you can see that rated voltage, applied voltage, so you can easily find the power of given appliances. So put the values. VA, it is already 100, so 100 multiplied by 100 because of square, divided by VR, rated voltage of the bulb, it is 220 multiplied by 220 and multiplied by rated power, it is 40 watt. So 20 cancel, here 100 and 22, 100 multiplied by 40, 22 आप देखो तो इसको अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि 11 multiplied by 11 कर दो, और 4 because 4 cancel, because you know that very well 11 2 जाए 11 2 जाए, so direct answer. So here 1000 divided by 121, whatever the answer, this is your answer, you can see. So most IMP, तो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, so you have to solve, we can say that yourself. This is the most important point. Ready? So VR square, V square upon R यानी VR square upon PR. आप इधर भी रेजिस्टेंस फाइंड करके भी डिवाइड कर सकते हो, नो डाउट। ओके, डायरेक्ट हो जाए इस तरह भी। ओके, वन मोर, तो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछेंगे। सो ये कहानी देखो, अब हमने डिस्कस किया वो जरा देखते हैं। तो अभी जेडब्ल्यू में जाते हैं और क्वेश्चन जेडब्ल्यू में से उठाते हैं। चलो, क्वेश्चन है जो ऑलरेडी
ट्रिपल ई 2000 में पूछा हुआ है, JEE 2012 देखना। नाउ टू इलेक्ट्रिकल बल्ब्स मार्क्ड 25, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, 25 voltage and 220 volt supply. What is the rating of the second bulb? Rating of the second bulb 100 watt and 220 volt supply. So what is the question? They are connected in series. मैंने बोला they are connected in series. मैंने बोला है वर्ड को पकड़ने का है series parallel. Series in series with supply of 440 volt. 440 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हो सीरीज में. Which of the bulb will fuse? तो कौन सा बल्ब जिसे कह सकते फ्यूज होगा? दिस इज द मोस्ट IMP पॉइंट. ओके, तो ये क्वेश्चन है. उससे पहले अपन लोग जिसे कह सकते हैं इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन देख ले. विच बल्ब वी कैन से दैट इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो विच बल्ब वी कैन से दे ग्लो विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस? पहला वाला बल्ब या सेकंड वाला बल्ब? टेल मी. मोस्ट IMP. तो ऑब्वियसली सीरीज के लिए हमने देखा था ब्राइटनेस इज सीरीज हो, तो याद करो सीरीज के लिए ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन सी दैट सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज. जिसका जिसे कह सकते हैं रेटेड पावर, जिसका रेटेड पावर कम उसका ब्राइटनेस ज्यादा. चेक करो 100, 200, 300 में सीरीज के लिए 100 ज्यादा चकाचक था. तो ऑब्वियसली जिसे कह सकते हैं इसमें किसका रेटिंग 25 वोल्ट. देखो तो पहला वाला बल्ब है वो जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ ग्लो होगा इन कंपैरिजन ऑफ 100 वोल्ट. अगर क्वेश्चन हम लोग इसके थ्रू भी सोल्व करना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अपन लोग जानते हैं दोनों बल्ब से. देखो ये फर्स्ट बल्ब एंड दिस इज सेकंड बल्ब, बल्ब 1 2. नाउ इट इज कनेक्टेड विथ सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट. तो इसमें से करंट निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव. देखो मोस्ट टाइम पे तो पहले बल्ब है उसमें से आई करंट पास होगा, सेकंड बल्ब में से भी आई करंट पास होगा. मगर फर्स्ट और सेकंड का मैक्सिमम करंट कैपेसिटी कितनी वो फाइंड करना हो तो फर्स्ट बल्ब के लिए अपन लोग फाइंड करें. फॉर फर्स्ट बल्ब यू नो दैट वेरी वेल P इज इक्वल टू फॉर्मूला है VA. तो I1 इज इक्वल टू P1 बाई V1. तो P1 यानी ये रहा देखो 25 अपॉन V1 यानी 220. इसी तरह फॉर सेकंड बल्ब वी कैन फाइंड I2. तो I2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 220. तो ये I2 मिल गया. तो मैक्सिमम दोनों बल्ब में से इतना करंट पास हो सकता है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी. इससे ज्यादा करंट गया मतलब अपन लोग जानते हैं कि गए. कोई बोले सर आपने तो सिखाया है कि ये 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है, ये दोनों को हम लोग 440 दे रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज इज ऑलरेडी मोर देन रेटेड वोल्टेज, तो डायरेक्ट दोनों को उड़ा दो. नॉट पॉसिबल. वो सिंगल बल्ब, एक बल्ब जिसका रेटिंग 220 है उसको मैं डायरेक्ट 440 दूंगा तो गया. मगर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यू नो दैट. इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए ध्यान रखना डायरेक्ट ये अप्लाई मत करना कि अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज देन स्वाहा. मगर वो बल्ब किस तरह कनेक्ट वो चेक करने का. अब अपन लोग इधर टोटल करंट फाइंड करेंगे. सो टोटल करंट यानी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू बल्ब्स. तो अगर R1 R2 फाइंड करना हो तो फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे. तो ये रहा उसका रेटिंग. तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको फिर बाद में सोल्व कर देने का है. R1 का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू सिंपली V स्क्वायर बाई P. सो इधर होगा V स्क्वायर बाई P1 और इधर होगा जिसे कह सकते V1 स्क्वायर बाई P1 और इधर होगा V2 स्क्वायर बाई P2. तो 440 अपॉन V1 इट इज 220. तो 220 स्क्वायर अपॉन P1 यानी 25 और 220 स्क्वायर अपॉन 100. इसको सोल्व करो यानी आपको मिल जाएगा I. अगर ये करंट की वैल्यू I, इफ I इज ग्रेटर देन I1, चेक करना आप घर पे जाके आपको अपना अप्लाई करना है. इफ I इज ग्रेटर देन I1 देन ऑब्वियसली बल्ब 1 वी कैन से दैट स्वाहा, क्योंकि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी I1 था, अपन लोग उससे ज्यादा करंट पास करवा रहे हैं. अगर ऐसा होता I लेस देन I2 यानी कि सेकंड का जो करंट है उससे जो करंट पास हो रहा है कम है, तो सेकंड बल्ब है वो सर्वाइव हो जाएगा क्योंकि उसकी करंट कैपेसिटी से जो करंट पास हो रहा है वो कम है. तो इसके ऊपर से आपको सोल्व करना है. तो ये JEE 2012 का क्वेश्चन था. सो फ्रेंड्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट. इन सेकंड पार्ट विल थिंक अबाउट फ्यू मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये तो ऐसा है कि इसको अपन लोग चालू रखे तो 3 लेक्चर में भी हो सकते हैं. तो
ऐसा हो तो अपन लोग जिसे कह सकते पार्ट बी है उसका डिस्कशन है वो एक ही साथ रखे तो पार्ट ए में भी कन्वर्ट कर सकते, डिपेंड्स। मगर मैंने बोला कि एक पार्ट का प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर लोड है, इसलिए अपन लोग इसलिए जा रहे हैं। तो अपन लोग दूसरा जो सेशन शुरू करेंगे वो पार्ट बी के फॉर्म में शुरू करेंगे। 15B हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जबरदस्त ये पहला पड़ाव है, अभी तो इसमें बहुत दम बाकी है और बेहतरीन क्वेश्चन है। सो विल सॉल्व नेक्स्ट लेवल इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स।